World News Headquarters. السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال اور میں ہوں مہوش نثار۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن میں بات ہوگی۔ وزیراعظم ہاؤس میں ہیکنگ کی کوشش، چیئرمین پی ٹی آئی سے تفتیش، صوابی میں خون کی ہولی، اور انتخابات کب؟ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے ملاقات کی۔ وفد میں 8 مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے طالب علم شامل تھے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو پاکستان کی بے پناہ قربانیوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کی ملاقات۔ وفد میں 8 ممالک کے طلباء شامل تھے۔ ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا پاکستان دہشت گردی کے خلاف کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ادراک ہونا چاہیے۔ آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور بھارت کی طرف سے آبادی کے تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کو بھی اجاگر کیا گیا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء نے ملاقات پر آرمی چیف سے اظہار تشکر کیا۔ سیکیورٹی اداروں نے سینئر سرکاری عہدیداران سے خفیہ معلومات کے حصول کی کوششیں بے نقاب کر دیں۔ وزیراعظم آفس کے مطابق ہیکرز نے واٹس ایپ کے ذریعے سرکاری عہدیداران کے موبائل فونز ہیک کرنے کی کوشش کی۔ واٹس ایپ پر موبائل ہیکنگ لنک بھیج کر معلومات کے حصول کی کوشش بھی کی گئی۔ وزیراعظم آفس کے مطابق حکومت نے تمام سرکاری افسران کو چوکنا رہنے اور ایسے کسی بھی میسج کا جواب نہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا موبائل پیغام موصول ہونے پر فوری طور پر کابینہ ڈویژن کو اطلاع دی جائے۔ اور اٹک جیل میں جے آئی ٹی انویسٹیگیشن ٹیم نے ثانیہ 9 مئی کور کمانڈر ہاؤس کے مقدمے کے سلسلے میں تفتیش کی۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے 2 گھنٹے سے زائد تفتیش کی۔ ٹیم کی قیادت ڈی آئی جی عمران کشور نے کی۔ ٹیم میں سب انسپیکٹر راشد اور ایس آئی شہزاد بھی شامل تھے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 78 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ قیمت 301 روپے پر جا پہنچی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مستحکم رہی اور ڈالر 314 روپے پر ٹریڈ ہوتا رہا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 79 پوائنٹس کی کمی ہوئی اور مارکیٹ 47,671 پر بند ہوئی۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوابی میں زمین کے تنازع پر خون کی ہولی، فریقین نے ایک دوسرے پر فائر کھول دیا۔ فائرنگ سے 4 بھائی موقع پر دم توڑ گئے جبکہ دوسرے گروپ کا ایک شخص بھی زخمی ہوا۔ فائرنگ کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد میں ولی اللہ، صفین، عماد اور عامر شامل ہیں۔ کراچی کے علاقے لسبیلا چوک کے قریب نالے میں دھماکے سے 8 افراد زخمی ہو گئے جبکہ متعدد دکانیں تباہ ہوئیں۔ پولیس کے مطابق لسبیلا چوک کے قریب نعمان مسجد کے سامنے سیوریج لائن میں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں متعدد دکانوں اور ایک پکوان ہاؤس کو شدید نقصان پہنچا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے 8 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جن میں سے بعض افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ شفاف انتخابات کے لیے امریکی حمایت کا اعادہ۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے 2 طرفہ تعلقات، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ امریکی سفیر نے مستقبل کی تعمیر کے لیے یو ایس پاکستان گرین الائنس کے ساتھ اور اس کے ذریعے کام کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ مذہبی اقلیتوں کے تحفظ پر پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ امریکی سفیر نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سرکاری دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے۔ نگراں وزیر اعظم 3 روزہ سرکاری دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ انوار الحق کاکڑ اپنے آبائی علاقے کان مہترزئی بھی جائیں گے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि इलेक्शन फरवरी के वस्त तक होने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। राना सनाउल्लाह का कहना था इलेक्शन हल्का बंदियों के 54 रोज बाद होना है। 14 दिसंबर को हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा 2018 के इंतखाबात में RTS को बिठाया गया। हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की शफाफियत पर भी बात की है। इलेक्शन कमीशन ने हमें यकीन दिलाया है कि वो इलेक्शंस को जल्द अज जल्द करने के लिए, हर वक्त आइन और कानून के मुताबिक करने के लिए अपना आइनी फरीज़ा सरअंजाम देगा। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील हैं, चूँकि जो मुल्क के मुआशी चैलेंजेस हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर एक मुंतखब हुकूमत, आइनी और जमहूरी तौर पे ऐसी हुकूमत जिसके पास पूरा मैंडेट हो, वो आके मुल्क की मईशत को इस्लाहात के ज़रिए मुस्तहकम करने के लिए अपना जमहूरी किरदार अदा करे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के चेयरमैन PTI सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ अदालत से गैर हाजिर हो गए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाते, हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे। अमजद परवेज़ की अदम हाजिरी पर अदालत ने चेयरमैन PTI सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समात पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस, चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, इलेक्शन कमीशन के वकील गैर हाजिर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के दौरान समात में अहम रिमार्क्स। कहा पीर तक कोई ना आया तो फैसला सुना देंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। दौरान समात इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ अदालत में पेश न हुए। मुआवन वकील ने कहा अमजद परवेज़ की तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस वक्त अहम मोड़ पर है। 15 से 20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। अदालत ने कहा हम ट्रायल कोर्ट वाला काम नहीं करेंगे, समात को पीर तक मुलतवी करते हैं, अगर कोई ना भी आया तो फैसला कर देंगे। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा एक शख्स जो 20 रोज़ से कैद में है उसे मज़ीद 3 दिन और कैद में रखेंगे। ताहम अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ की इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समात पीर तक मुलतवी कर दी। नैब को आला कार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के अहद चीमा की जमानत मंसूखी केस में रिमार्क्स। नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अतर मिनल्ला से इस्तिफसार किया कि अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा। नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? आपको बताएं कि चेयरमैन PTI की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा। चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहिक हैं। मुश्किलात ताखीर के बाद 22 अगस्त को शौहर से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम होने वाली खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक़ कर दी। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने साइफर केस के बंद कमरे में समाअत की। दौरान शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि साइफर उन्होंने अपने पास नहीं रखा। बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने साइफर वज़ारत ख़ारजा को भेज दिया था। ताहम FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मज़ीद 9 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसके वकील शुएब शाहीन ने मुखालिफत की। ताहम अदालत ने शाह महमूद के मज़ीद जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ कर दी। बिजली की लोड शेयरिंग और इजाफी बिलिंग पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। शहर लोग सड़कों पर निकल आए। कौंसल शरीफ अटक में शहरियों का बिल न जमा कराने का ऐलान। खानपुर में बिजली के बिल जला दिए। गुजरांवाला में जैक्को ऑफिस का घेराव। टोबा टैक्सिंग में खवातीन का एहतजाज। बिहाड़ी में ताजरों ने बिजली बिल से जालिमाना टैक्स ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया।
बिजली आती नहीं, बिल भारी भरकम आते हैं। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। खानपुर में जायद टैक्स वसूली के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नवाकोट चौक पर बिजली के बिल जलाए, वापडा के खिलाफ शदीद नारे भी लगाए। दुहाई दी के 10 से 15 हजार महाना कमाने वाला 25,000 का बिल कहां से भरे। बढ़ते हुए बिलों की वजह से तमाम आवाम जो है वो बहुत ही मुश्किल में है। एक तो आवाम की 500 रुपये जिसकी दिहाड़ी है और बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं, वो गरीब आवाम बिल कहाँ से बचे। अटक में भी आवाम ने एहतजाज किया। बस अड्डे से कचहरी चौक तक रैली निकाली। बोले कम तोड़ महंगाई में बिजली के इजाफी बिल आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी खाएं या बिजली के बिल जमा कराएं। गरीब आवाम कहाँ से जमा करवाए। आप लोगों की गलती है। 5 रुपए बिजली बढ़ी है, आप लोगों ने बिल जमा करवाए हैं। 10 रुपए बढ़ी है, आप लोगों ने फिर जमा करवाए हैं। आज 12 रुपए से 50 रुपए यूनिट चली गई है। हम करवाते रहेंगे जमा। कब तक हम खामोश रहेंगे। तौसा शरीफ में बिजली के टैरिफ और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी और शहरियों ने मिलकर एहतजाज किया। मुतालबा किया कि बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस खत्म किए जाएं। कि अगर बिजली नायाब है, अगर बिजली महंगी है, तो फिर ये जो मुफ्त यूनिट हैं, ये जो 650 अरब रुपए की सालाना बिजली आप लोग खा जाते हैं, फिर इस पर भी इस तरीके से टैक्स नाफिज किए जाएं और ये मुफ्त बिजली बंद की जाए। बिहाड़ी में भी इजाफी टैक्सेस के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आए। कहा ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं। आज हमारा एहतजाज इस जालिमाना टैक्स और जालिमाना बिजली के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए है। बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ दीगर शहरों में भी मुजाहरे किए गए। मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। तारीख में पहली बार चीनी की कीमत 172 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच गई। कोयटा में 172 रुपये और कराची में 170 रुपये किलो में दस्तयाब। लाहौर में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत बढ़ते ही मार्केट से चीनी गायब हो गई। आटा पहले ही पहुंच से दूर था, अब महंगी चीनी ने बेचैनी बढ़ा दी। माफिया ने देखते ही देखते फी किलो कीमत 150 के पार पहुंचा दी। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे का नया रिकॉर्ड बन गया। तारीख में पहली बार कीमत 172 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंच गई। कोयटा के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। फी किलो कीमत 172 रुपए हो गई। कराची में 170 रुपए में दस्तयाब है। इस्लामाबाद और पेशावर में शहरी 165 रुपए फी किलो में खरीद रहे हैं। लाहौर में कीमतें बढ़ते ही चीनी का बहरान संगीन हो गया और चीनी मार्केट से गायब कर दी गई। ओपन मार्केट में चीनी 175 रुपए तक में दस्तयाब है। अबूरी हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि बिजली के शोबे में अवाम के लिए सब्सिडीज को कम किया जा रहा है। बिजली महंगी की गई है ताकि गर्दिशी कर्जा कम हो सके। रुपए की कदर को भी मार्केट पर छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक ईरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF हुकाम से वर्चुअल मीटिंग हुई। IMF ने निगरान वज़ीर ख़जाना से मुआहदे पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर ख़जाना ने शराइत पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा एक्सचेंज रेट कंट्रोल करने के लिए कोई मसनूई पॉलिसी इख्तियार नहीं की जाएगी। अगले साल जून तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। कराची की पाक कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया बड़ा बोर्ड नूरानी मस्जिद के करीब डकैती के दौरान मज़ाहमत पर पेश आया। जान बहक शख्स की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मी शख्स की शनाख्त के नाम से हुई है। कराची सचल भक्कर गोट में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी की जान ले ली। फायरिंग करके बेटी और उसके दोस्त हसन को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने लड़की के वालिद डॉक्टर रफीक समेत 2 मुलजमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। कराची में गैरत के नाम पर एक और कत्ल। सचल बखरगोट में बाप ने बेटी की जान ले ली। फायरिंग करके लारेब और इसके दोस्त हसन को मौत के घाट उतार दिया। दोनों सुबह गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे कि वालिद ने फायर खोल दिए। पुलिस ने लड़की के वालिद डॉक्टर रफीक और भाई को गिरफ्तार कर लिया। SP चौधरी सुहेल के मुताबिक मुलजमान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। लड़की का नाम लारेब है और लड़के का नाम है हसन। इन दोनों की दोस्ती थी जो इनिशियल पता चला है। और ये लड़की को सुबह छोड़ने के लिए आया है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए बातें कर रहे थे। घर में देखा बेटी नहीं, आके फिर ये दोनों गाड़ी में थे। इन दोनों गोलियां मार दी, जिसका उन्होंने इतराफ़ भी किया। वो हमने गिरफ्तार कर लिए। पुलिस ने चावकवा से गोलियों के खौल बरामद कर लिए। असला भी कब्जे में ले लिया। मज़ीद कार्रवाई जारी है। आपको बताएं कि भारत ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग मुमताज़ ज़हरा बलोच ने बताया कि 60 साल पाकिस्तानी शहरी कश्मीर में इश्तिआल अंगेज़ी का निशाना बने। पाकिस्तान ने इंडिया को सीज फायर मुआहदे पर अमल करने पर जोर दिया। और अब आपको बताएं कि हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई। कौमी जेवलिन थ्रो ने
86.79 میٹر دور نیزہ پھینک کر فائنل میں جگہ بنائی۔ بین الاقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے واحد کھلاڑی ارشد ندیم ہیں۔ گروپ اے انڈیا کے اولمپک چیمپئن نیرج چوپڑا نے بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فائنل مقابلہ اتوار کو منعقد ہوگا۔ بابر اعظم دنیا کرکٹ کے نئے بادشاہ، ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اور ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ 100 ون ڈے اننگز میں سب سے زیادہ 5142 رنز بنانے کا اعزاز حاصل کیا۔ کپتان نے 58.43 کی اوسط سے رنز بنائے۔ بول نیوز ہیڈ کوارٹر سے خبروں میں اتنا ہی۔ کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔